थे and as you know there are a lot of methods so it is not easy to remember each and every method so उसके लिए हमने रेफर किया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन रेफर करने के बाद देन वी स्टार्टेड यूजिंग विद फ्यू एग्जांपल हमने एग्जांपल देके कई दो चार फंक्शंस और दो चार मेथड्स हमने क्लास में सीखे थे एंड रिमेनिंग मेथड्स वाज फॉर अ होमवर्क राइट and I'm not sure how many of you have explored many options but if you start exploring the options which are given in the documentation you will feel confident it's just a part of confidence because basic you know what are methods को कैसे कॉल करना है but what are the different additional parameters you need to pass all those things you need to learn and that has to be using a documentation okay क्लियर सबको कि व्हाट प्रोसेस वी आर फॉलोइंग एंड इन बिटवीन हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे हैं असाइनमेंट्स आपको दिया है एंड वी हैव मार्क्ड जहाँ जहाँ भी है कमेंट करके लिखा है कि दिस इज फॉर इंटरव्यू दिस इज फॉर रिमेम्बर सच एज रेंज हमने सीखा था कि स्टार्ट एंड -1 स्टेप राइट all those comments interview questions additional details are already mentioned in the file जुपिटर नोटबुक में ऑलरेडी फाइल मतलब मेंशन किया हुआ है राइट सो दिस इज हाउ we learned most of the things with help of the theory and as well as the practical में हमने करके देखा directly so there is not a single thing which I have mentioned during the lecture or during the session which I have not shown you the proof मतलब जो भी हमारा क्लास शुरू है और जो भी सेशन है इस सेशन में मैंने ऐसे एक ही मतलब नॉट अ सिंगल सेंटेंस और ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं बोला जिसका आपको मैंने प्रूफ नहीं दिखाया राइट एज इन कुछ भी हो सच एज फॉर एग्जांपल आपको टपल इज इम्यूटेबल जो आप हर बार बोलते हो डिफरेंस के टाइम पे तो उसका प्रूफ भी हमने क्लास में देखा है राइट सो यू टेक एनी एग्जांपल सच एज वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन होता है ये थियरी में आप पढ़ोगे समवेयर इफ यू रीड बट उसको एक्चुअल में क्या मेमोरी लोकेशन है ये भी हमने देखा है हाउ बाय यूजिंग id फंक्शन id और वेरिएबल का नाम पास करोगे तो आपको एक्चुअल मेमोरी लोकेशन मिलेगा apart from this most of the things whatever आपको प्रूव करना है such as tuple is a default data types तो उसके लिए भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं बहुत सारे राइट while लूप वगैरह while लूप इंक्रीमेंट क्यों करना चाहिए इंक्रीमेंट नहीं किया तो क्या होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेट इज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड जो आप बोलते हो तो वो भी हमने करके देखा है राइट सो एक्सपेक्टेशन यही है आपसे कि वट एवर यू आर सेइंग related to Python, you should be confident enough to prove it prove it on the Jupyter notebook or prove it in the interview. Whatever you are saying, clear सबको. This is what the understanding is. Okay, online clear सबको how we have completed most of the things, how we are learning, and what is expected from your side. Okay. Okay, good then. So today we are going to learn few um, advanced or maybe you can say not day-to-day used functions. So next type of function is a higher order function. Okay, higher order function हम देखने वाले हैं आज. So why higher order function? There are multiple reasons. So higher order function has a few properties such as जो हम फंक्शन आज तक देख रहे हैं whatever हमने देखा है आज तक the function which we have seen till this point can take only variable as a argument मतलब आप वेरिएबल नहीं तो डेटा टाइप आप पास करते हो be it a list tuple string number as a input
आप पास करते हो फंक्शन को और एज आर्ग्यूमेंट पास करते हो, बट व्हाट इफ आपको फंक्शन भी पास करना है, फंक्शन भी एक फंक्शन के एज आर्ग्यूमेंट पास करना है, so that time we have to use a something called higher order functions. So important properties. Yes, sir. Important thing about the higher order functions here, like if you want to say why these are called higher order functions, because these functions take another function as a input or as a argument or as a parameter, so that's why we call them a higher order functions. Okay, तो कैसे लिखते हैं, लेट अस सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शंस. सिंटैक्स क्या है देखिए इसका, सिंटैक्स इज हाउ टू राइट. सो दिस इज हाउ वी राइट. ये देखिए, दिस इज मैप, फिर रेगुलर फंक्शन जैसा फंक्शन, पैरेंथेसिस, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, फंक्शन है और एक फंक्शन, एंड नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इटरेटर. इटरेटर नहीं तो कलेक्शन नहीं तो सीक्वेंस. ओके, ये आपको देना है. क्लियर, मैप लिखना है. सेम गोज विद द फिल्टर एज वेल. ये देखिए, फिल्टर का ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे दिस इज फिल्टर. ओके, स्क्रीन शेयर के लिए नहीं है. ओके ओके मैम, जस्ट अ सेकेंड. Hope my screen is visible now. Okay. Hope my screen is visible. Yes, no. Okay. So what we're looking at is higher order functions. In this, we have a map and filter, right? Syntax is map and then parenthesis, and inside this you pass a function and there is a iterator. So same for a filter. Filter also we have called function and iterator. Okay. Regular, how we write function, right? We write a name of the function and we give a parenthesis. So this is our right. Only thing is difference is यहाँ पे function लिखा हुआ दिखेगा आपको, देखिए, मतलब function के अंदर आपको एक function पास करना है and then iterator. So important thing about the map is the output will have a same number of element as input. मतलब मान लीजिए input में 3 input है तो output में भी 3 output आ जाएंगे. 1-to-1 मैपिंग होता है, मतलब जितना आप इनपुट दोगे उतने ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपको आउटपुट में मिलेंगे. ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है तो आप मैप नाम के मैप एज अ इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो. ओके, important thing is input should be equal to the number of outputs. Same thing, there's one more function called filter, and filter का भी syntax ऐसा ही है, same to same लिख सकते हो. Only thing is the output will have lesser number of elements than input. मान लीजिए इनपुट में 4 है, 4 नंबर आप पास कर रहे हो, आउटपुट में 2 चाहिए, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम आपने अभी तक लिखा है जहां पे आई कैन यूज अ फिल्टर? कैन यू गाइस टेल मी, जहां पे इनपुट 5 नंबर है बट आउटपुट में 2 या 3 ही आए हैं आपके यहाँ पे? ये फंक्शन बहुत बार किया है, मोस्टली एवरी अल्टरनेट डे हमने ये प्रोग्राम किया है.
जहाँ पे आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। रेंज इज टू जनरेट नंबर्स ऑनलाइन। यस। और बहुत ज्यादा है। वॉवेल्स तो हमने हर रोज नहीं देखा है, 2 बार देखा है। वन ऑफ देम इज वॉवेल्स। फिल्टर देखिए, वॉवेल्स फाइंड आउट करने के लिए फिल्टर, क्योंकि मेरे नाम में 5 अल्फाबेट्स है, इसमें से एक या दो सिर्फ हो सकते हैं वॉवेल्स, राइट? सो आई कैन यूज अ फिल्टर देयर। डुप्लीकेट लिस्ट, ओके। एक बहुत सिंपल है, वो आपको समझ नहीं आएगा। सेट नो। ऑनलाइन एनी वेयर कैन आई यूज अ फिल्टर, हमने क्लास में बहुत बार एग्जांपल देखे हैं। यस, यस मयूर, ऑड एंड इवन नंबर्स कितना कॉमन है, राइट? सो इन दैट केस वी शुड यूज अ फिल्टर। नंबर, आई हैव सेंट 10 इनपुट, उसमें से 5 आउटपुट आ रहे हैं हर बार। ऑड निकालना है तो 5 आते हैं, इवन 5। तो व्हाट इज हैपनिंग इज फिल्टर हो रहा है ना वैल्यूज का, बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, डजंट मैटर। हमारे केस में ऑड एंड इवन का कंडीशन है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन डू वी यूज फिल्टर। जब भी आपको कंडीशन बेस्ड आपको कुछ वैल्यूज फिल्टर आउट करने हैं, मान लीजिए there are 100 students in the class, okay? Out of which only 60 students have cleared their exam, right? So remaining 40 are failed. So the requirement is you need to print the roll number of students who have cleared their exam, right? So this can be a filter exam. मतलब यहाँ पे आप फिल्टर एज अ फंक्शन, जो फिल्टर हम हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सो दैट आई कैन यूज। फिर मैप के लिए व्हाट आर द रियल वर्ल्ड केसेस? सो मैप के लिए same example, if there are 100 students in the class, I want to, whenever they change their division or they go to next level, as in first to 8th standard there are no exam, no, everybody will go without even exam. So every year their division has to be changed. This year they are in 5th division, next year they will be in the 6th division. So is there any filtering happening? No, right? Each and every student in a 5th grade will go to 6th. So 1-to-1 match. So in that case, you can use map as a function, right? Okay, clear. When do we use map and filter? Okay, so let us see how we can use them, or programmatically कैसे उनको use करना है. So it's a simple example. Write a function to calculate square of a given number. मतलब एक नंबर दिया जाएगा, उसका स्क्वायर आपको प्रिंट आउट करना है. सो कैन आई से इट इज एग्जांपल ऑफ मैप, क्योंकि 1-to-1 मैच हो रहा है। एक नंबर दिया तो एक आउटपुट आएगा, 2 नंबर दिया तो 2 आउटपुट आएंगे। आपको स्क्वायर करना है, फिल्टर नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो we'll see the regular logic के साथ हम ये प्रोग्राम करेंगे। We will do this program with our regular logic. Regular logic means loop, for loop, while loop, all those things. So there is list called numbers, which is 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, some random numbers. Okay. So I want to print square of each and every number. So what I can do is for number in numbers. Okay, क्या करता है ये? It is creating temporary variable called number, then creating a iterator and passing number one by one here. Initiate it will pass 3, right? Then this 3 will come down. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? नंबर। नंबर में क्या है? 3। स्टार स्टार 2 का मतलब स्क्वायर ना, पावर ऑफ फंक्शन, राइट? तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 9। प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ओके, तो एक बार ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल गो अगेन एट द टॉप, बिकॉज इटरेटर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा ना। सो लेट्स जस्ट टेक नाउ इट्स 11, राइट? 3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, राइट? नंबर में क्लियर। देन 11 नीचे आएगा, अभी क्या आएगा? प्रिंट 11
स्टार स्टार 2, 11 का स्क्वायर 121, देखिए है क्या 121? हाँ अवेलेबल है, देखिए है ना। So whatever number I am passing in the list, each and every number has its square. Okay, and this square is, we are printing the square of all the numbers. So end is at 14, you can say it is 196 here. Clear? So this is the regular, you can use regular approach where you can use a for loop. The next thing happens is, so I can do it the same using list comprehension. वन मोर अप्रोच, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, पहले तो मुझे लिस्ट लिखना पड़ता है, ऐसे लिस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। देन इधर आता है आउटपुट, फिर उसके बाद आता है लूप, राइट। सो आउटपुट में क्या चाहिए, नंबर स्टार स्टार 2, दिस इज माय कंप्लीट आउटपुट, और यहाँ पे लूप लिखा है फॉर नंबर इन नंबर्स। तो हर एक आउटपुट आप देख सकते हो, ये देखिए 9, 59, 25, 36, 49 until 196, which is square of 14, right? So let us see same thing using a lambda function. Sorry, not lambda but a map as a function. तो ये क्या करता है, देखिए square is equal to, यही पे भी square is equal to था, यहाँ पे list comprehension की जगह मैंने map function यूज किया है, map, और ये function close हो रहा है, clear? Is this the map function? और इसका आउटपुट स्टोर हो रहा है स्क्वायर में, एंड मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्क्वायर। ओके, डोंट लुक एट हियर, इसको आप फॉर अ टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर, इसमें क्या लिखा है ये आउटपुट इग्नोर कर सकते हो, और एल्स, हाँ अभी क्लियर है। चलो, स्क्वायर है, आप प्रिंट कर रहे हो, ये आउटपुट स्टेप हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया, और इनपुट ऊपर दिया है हमने ऑलरेडी। चले अभी बोलिए, पहले मैप जो फंक्शन है उसके दो आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट है फंक्शन, दूसरा है इटरेटर और कलेक्शन। कलेक्शन में क्या आएगा, नंबर्स, मतलब ये वाला, ये आएगा ना, इसके ऊपर मुझे आउटपुट चाहिए, तो ये एज अ कलेक्शन हम पास करेंगे फंक्शन को, विच इज अ मैप। सो आई एम पासिंग दैट, ये देखिए कर रहा हूं पास, क्लियर। अभी नेक्स्ट आर्गुमेंट इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या पास करना है मुझे, फंक्शन पास करना है। तो फंक्शन कैन बी एनीथिंग, यूजर डिफाइंड हो सकता है, इनबिल्ट हो सकता है, एंड लैम्डा। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ लैम्डा फंक्शन, लैम्डा नंबर कोलन नंबर स्टार स्टार 2 एज इन नंबर रेज टू 2, यही चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नंबर थे इसमें से एक एक नंबर उठा के इधर पास करेगा, फिर इसका आउटपुट ये स्क्वायर में स्टोर होगा, ऐसे चलते जाएगा, कितने भी यहाँ पे नंबर्स है उसको इधर आएगा, एक 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 आएगा, कैलकुलेट होगा, उसका आंसर ये वेरिएबल में स्टोर होएगा। ओके, दिस इज हाउ दिस एंटायर फंक्शन वर्क। आपने जो भी आपका लॉजिक है आपने कॉम्प्रेस कर दिया है एक सिंगल लाइन में। ओके, so this is the application, this is how you can write a map function. इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मैप फंक्शन इज, स्क्वायर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें आंसर स्टोर हो रहा है, आप उसको प्रिंट करके देखोगे, देन यू विल रियलाइज, देखिए आंसर इसका आ रहा है ऑब्जेक्ट, मैप ऑब्जेक्ट एट लोकेशन दिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टोर तो कर रहा है, वैल्यूज स्टोर कर रहा है, बट इट इज स्टोरिंग एट एज अ वेरिएबल। इस लोकेशन में इसने कुछ एक वेरिएबल बनाया है कॉल्ड मैप ऑब्जेक्ट, इस मैप ऑब्जेक्ट में इसने आंसर स्टोर करके रखा है। ओके, तो इस आंसर को निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ लिस्ट। लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है दिस ऑब्जेक्ट को, लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हो आप। लिस्ट फंक्शन, लिस्ट का फंक्शन कैसे यूज होता है, ऐसे ही ना, यही रहता है ना लिस्ट का फंक्शन। लिस्ट बाहर प्रिंट है, वो प्रिंट आपको पता है, एंड ये स्क्वायर को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ये देखिए आ रहा है। तो यू कैन गेट अ कंप्लीट आंसर, जो भी आंसर आपका है यू कैन गेट। तो इसको ही और ऑप्टिमाइज करना है, ये दो लाइन का एक लाइन में मैंने लिखा है, प्रिंट आपको पता है क्या है,
लिस्ट क्यों करना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को इटरेबल बनाने के लिए लिस्ट, फिर उसके बाद मैप, ओके, फिर उसके बाद फंक्शन पास किया है मैंने स्ट्रिंग डॉट अपर, एंड उसके बाद एक नाम का लिस्ट पास किया है। तो यहाँ से एक आएगा, अक्षय आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट अपर, ये क्या है, सॉरी आकाश इज अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट होगा मतलब कैपिटल, और इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और ये लिस्ट को प्रिंट किया जाएगा। तो आपको ये आउटपुट आ रहा है, यहाँ आकाश आ रहा है। सो सेम वन बाय वन उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आपको ये आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो पूरा जो भी आपका लॉजिक था इंटायर, आपने एक लाइन में कॉम्प्रेस किया है। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको स्पेस रिलेटेड इशू था, राइट? मतलब आगे पीछे स्पेस थे। सो व्हाट आई कैन डू इज स्ट्रिंग डॉट अपर कैपिटल करना है, डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप नाम का भी फंक्शन आता है, राइट? तो ये क्या करता है, आगे और पीछे के जो स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस, वो रिमूव कर देता है। मतलब पूरा क्लीनिंग स्टेप आप एक लाइन में लिख सकते हो लिटरली। मतलब उस नाम को एज अ लिस्ट में स्टोर करना है, नाम को पिक करना है, उसके फ्रंट एंड स्टार्ट एंड एंड में ब्लैंक है तो वो निकाल देगा, फिर उसके बाद अपर में जाएगा, फिर उसके बाद मैप में जाएगा, फिर उसके बाद लिस्ट एंड देन प्रिंट। सो कंप्लीट क्लीनिंग स्टेप यू कैन डू इट इन वन line. Clear, right, everyone? So if you want any other checking, maybe you can check whether this is exactly a alphabets or not. ऐसा नहीं हो कि किसी ने नंबर डाल दिया है 1 2 3 1 2 3, नाम की जगह 1 2 3 नंबर डाल दिया है, राइट? ऐसे केसेस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, आपने डायरेक्टली आंसर बोल दिया, बट आई वांट अदर्स टू टेल ऑनलाइन। I guess you have practiced a lot. Online, I have a very unique case where instead of names, यहाँ पे नाम की जगह मैंने नंबर्स पास किया किसी ने, ओके? ये देखिए ऐसे नंबर्स। As a developer, we have not put any limit or not put any condition what as a name person can enter. So unfortunately वो आ गया है डेटाबेस में अभी। तो वो डेटाबेस में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर क्लीनिंग नहीं करोगे। तो डेटा क्लीनिंग स्टेप करना है मुझे। सो व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज द लॉजिक ऑनलाइन, कौन बताएगा? इंस्टेड ऑफ नेम्स आई एम पुटिंग अ नंबर, so I want to clean this data. Online, anyone? Mayur, yes, no. Mohit, Prasad, Shraddha, Swati, Vishal, Hemant, Gaurav, Chetan, Chaitrali, Atharv, Atharv 1, Atharv 2. Yes, anyone? Or it's a too simple logic, है ना? क्या सर, ऐसे थोड़ी होता है, इतना आसान पूछ सबको आता है ना? ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड, चेक कीजिए यहाँ पे डॉट दीजिए, प्रेस टैब, टैब डजंट वर्क, इतना भी ऑटोमेशन नहीं चलेगा। आप एक्चुअली चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपको क्या चेक करना है कि कौन से फंक्शन आते हैं, राइट? कॉपी, लेट मी क्रिएट दिस एज अ स्ट्रिंग हियर, आई गेस इधर ही वर्क होता है ये। यहाँ पे डॉट लगा के टैब प्रेस कीजिए, आपको कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है दिखता है यहाँ पे, देखिए। एंड्स विथ, एक्सपांड, फॉर्मेट, इंडेक्स, ये देखिए, इज अल्फा न्यूमेरिक, is ASCII, is decimal, all these things are applicable. So just type it, क्लिक कीजिए यहाँ पे कौन सा चाहिए था आपको, is अल्फा, क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट्स रहेंगे मेरे इसमें, राइट? क्लिक कीजिए, तो ऐसे ये लिख के आता है। इसको कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ पे, ओके, is अल्फा। क्या क्या करेगा, पहले स्टेप्स, पहले तो ये है कि नहीं देखेगा,
फिर स्ट्रिप करेगा, फिर अपर करेगा, एंड देन इट विल पास, वो आगे 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 जाएगा, है ना? क्लियर? लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. अरे नहीं वर्क हो रहा है लॉजिक आपका. क्या बोल रहा है? हाउ टू डीबग क्विकली? चलो डीबग कर दीजिए, कैसे करना है. ओके, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप मतलब ओके, एक से ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप. ऑब्जेक्ट कौन सा है? कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे? और लास्ट वाले ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये स्ट्रिप नहीं हो रहा है. ओके, तो ये रिमूव कर दीजिए. लेट अस सी. अरे ये भी नहीं हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? एनी आइडिया? कैन एनीवन गेस? और okay, so maybe you can figure it out. If you not possible, maybe we can discuss what is happening, why it is happening. Okay, फंक्शन चेनिंग कर रहे हो आप. फंक्शन चेनिंग, राइट? हमने एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन ऐसा किया था. वी हैव यूज्ड दिस, बहुत बार हमने यूज किया है. कहाँ पे? कैन एनीवन फाइंड इट आउट? मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, बट मोस्टली वी हैव यूज्ड इनबिल्ट फंक्शंस. मेथड्स हमने यूज किया है क्या कहीं? हैज एनीवन ऑब्जर्व्ड? यस, नो? फंक्शन चेनिंग, ठीक है. हाँ, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ फंक्शन. प्रिंट टाइप एज, फंक्शन के अंदर फंक्शन वगैरह कर रहा हूँ मैं, है ना? फंक्शन चेनिंग वगैरह. बट आई वांट यू टू ट्राई इट फॉर मेथड चेन. लाइक मेथड्स का चेन बनाइए एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट. मतलब जैसे फंक्शन का हम बना रहे थे ना, सो ट्राई टू यूज अ मेथड्स. Online, any response, anything you want to say? Don't say, don't know. कि confused, what is function, what is method? Yes, no? Online, any response? Okay. Hemant, Mohit left the class. बहुत बोर हो रहा है क्या आज? Okay. Online फिर no response at all. Okay, chalo, not an issue. So we'll continue with our filter function then. Next one is write a function to check whether the given number is odd and even. तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? Inbuilt higher order function. filter. Should I use map? No, you can't. नहीं, right? I'm filtering the number based on the odd and even. जो भी logic है आपका उस पे. तो मैं क्या करता हूँ? एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ is odd, और उसका एक नंबर पास करता हूँ. ये आपने किया है ऑलरेडी, राइट? बहुत कौन है, सिर्फ इसमें ये रिटर्न स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है, विल सी. पहले तो ये लॉजिक देख लेते हैं. एक फंक्शन डिफाइन किया है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि डीएफ कीवर्ड है. इज और उसका नाम है, और ए आर्गुमेंट क्या ले रहा है? नंबर, राइट? फिर इसके बाद लॉजिक क्या चेक करा? इफ नंबर m%2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गया, देन रिटर्न नंबर. मतलब ऑड नंबर्स में निकाल रहा हूं इन शॉर्ट, राइट? इवन नंबर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये डबल इक्वल टू करना पड़ेगा, राइट? फिर मैंने एक ऑड नंबर्स का एम्प्टी लिस्ट लिया है. अभी फिर देखिए मैंने क्या किया है. फॉर नंबर इन नंबर्स, मतलब नंबर्स कहाँ पे है? ये वाला. ये नंबर जो है, ओके सर,
so for each number in numbers you take one by one, यहाँ पे ये आएगा number, फिर उसके बाद temp which is a temporary variable, फिर ये क्या है function call, right? function call कर रहा है, function call करेंगे तो कहाँ पे जाएगा function, ऊपर आएगा, ये नंबर क्या करेगा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे नंबर आया 3, राइट, 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, 3 2 क्या आंसर आता है, 3/2 काय होतं उत्तर, बाकी काय येते बाकी त्याचे, 1. 3/2, मग ती बाकी नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे 0 बरोबर इक्वल नाही, राइट, दॅट इज ट्रू, तर रिटर्न काय कर नंबर, सो दैट नंबर रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, टेम्पररी वेरिएबल में आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा है, फिर टेम्पररी वेरिएबल नॉट इक्वल टू नन, मतलब यहाँ पे नन है कि नहीं चेक कर रहा हूँ, क्यों चेक करना पड़ा है नन, क्योंकि व्हाट इफ ये इफ कंडीशन फॉल्स आ गया तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस केस में द केस वेयर रिटर्न स्टेटमेंट डजंट एग्जीक्यूट, तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या पास करता है आपको, नन पास करता है ना, मतलब फंक्शन के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या मिलता है नन, तो इसलिए मुझे वो नन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नन है तो वापस ये कैंसिल करो पूरा प्रोग्राम, और नन नहीं है मतलब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर अपेंड कर दो, टेम्पररी नंबर, ये टेम्पररी में ऑड नंबर है, अपेंड करना है इस लिस्ट में, और ये लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, यहाँ देखिए, यस नो कुछ समझ में आ रहा है, नन नाही लिहिलं तर काय म्हणून अपेंड करणार, तुम्हाला हे 3 नन 5 नन 7 नन असे येतील तुम्हाला, ओके, यू कैन ट्राई, नॉट एन इशू, ये देखिए इसको मैं कमेंट कर देते हैं और इसको इंडेंट कम करना पड़ेगा आपको एंड देन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आ रहा है, अभी नन कैसे निकालना है फिर, तो इसलिए ऊपर वाला लॉजिक चेक कीजिए, तो ये निकाला मैंने और इसको इंडेंट में डाल दिया एंड देन एग्जीक्यूट कर, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट वो एक लाइन कमेंट आउट करके आप फ्लो एग्जीक्यूट समझ सकते हो, क्योंकि हर एक चीज क्यों किया है, व्हाट इट इज डूइंग, ओके, सो सेम जैसे हमने ऑड नंबर्स के लिए किया, so what I can do is I can use a filter function, filter में क्या करूंगा, filter inside I can pass a number, filter lambda number ampersand to not equal to 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही I should get an answer, if that condition is not satisfied I will not get an answer, तो यहाँ पे नन वगैरह का लॉजिक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल दिस इज टेकन केयर बाय फिल्टर फंक्शन, नन है तो वो रिमूव कर देता है अपने आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर फिल्टर फंक्शन, ये फंक्शन है, ये कलेक्शन है, फिर फिल्टर किया उसको हमने ट्रांसलेट लिस्ट में किया है, इफ मैं लिस्ट को निकाल देता हूं तो क्या आएगा आंसर, फिल्टर ऑब्जेक्ट, फिल्टर ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, राइट, तो इसको कन्वर्ट करना है तो आई शुड यूज लिस्ट, क्लियर, इसका भी थोड़ा और, ये भी, ये जो हमने, सॉरी, ओके आई डिड कमेंट, अरे हाँ, डायरेक्टली आई कैन यूज अ फिल्टर फंक्शन एज वेल, मतलब ये ऑड नंबर्स लिस्ट का वेरिएबल भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, फिल्टर फंक्शन लैम्डा नंबर एम्परसेंड टू नंबर्स, इसको कन्वर्ट किया लिस्ट में, दैट्स इट, एक लाइन में आपका पूरा लॉजिक हो जाता है, सो यू कैन यूज मल्टीपल लॉजिक्स, आपको ऐसे कुछ लॉजिक्स चाहिए तो, ओके, then there is a next list of students who have passed, मतलब okay, who
मोर देन कितना रहता है 35 मार्क्स वगैरह के। ओके, तो आप एक लैम्डा फंक्शन लिख सकते हो। ओके, परसेंटेज है यहाँ पे, मार्क्स मान लीजिए उसके मार्क्स है, और मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 35। सम ऑफ मार्क में डायरेक्ट परसेंटेज निकल सकता, मार्क्स कितने चाहिए, ग्रेटर देन 35। ऐसे ही मुझे आउटपुट में चाहिए ना, फिल्टर और ये मार्क्स, और इसके अंदर फंक्शन क्या लिखना है, मार्क्स ग्रेटर देन 35, और लैम्डा मार्क्स कोलन मार्क्स ग्रेटर देन 35। इसको एग्जीक्यूट कीजिए। आ रहा है क्या आपको, ऐसे स्टूडेंट के नाम्स आ रहे, सॉरी वॉट एवर मार्क्स आ रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। मान लीजिए इसी केस में मुझे स्टूडेंट्स के नाम्स चाहिए, नेम्स चाहिए। हाउ आई कैन डू, what I can do is I can create a dictionary जहाँ पे names and marks are there, name marks, और फिल्टर में कलेक्शन है, कलेक्शन में मैं डिक्शनरी पास कर देता हूँ। यस, लेट्स टेक एग्जांपल। चलिए मुझे अभी डिक्शनरी बताइए, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डिक्शनरी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऐसा नाम। चलिए नीचे के नाम लेते हैं, दो चार नाम्स, कॉपी बस। अभी इसको डिक्शनरी करना है। चलिए आकाश को कितने मार्क्स देना है, 55। अमित को कितने देना है, 67। अनिल को कितना देना है, यस, ओके 82। देन कुमार डेफिनेटली हैज टू बी फेल, क्योंकि हमें देखना है राइट वेदर आवर कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। पहले तो ये चेक कीजिए डिक्शनरी है कि नहीं। ओके डिक्शनरी तो है राइट, प्रिंट हो रहा है। अभी मुझे ऐसे अनिल ये आउटपुट में आना चाहिए, तो कैसे लॉजिक लिखना है पहले तो अभी बताइए मुझे। मैं हर एक का मार्क्स कंपेयर करूंगा, और वो मार्क ज्यादा है तो मुझे उसका नाम दे दो, दैट्स इट। तो कैन यू टेल मी कैसे करना है, और ऐसे करते हैं, चलो प्रिंट क्या करना है मुझे, की करना है राइट, बट लॉजिक किस पे लिखना है, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 35। ये लॉजिक है, मतलब वैल्यू को लॉजिकली चेक करना है और आउटपुट में की चाहिए। कैसे डेवलप करते हैं, कैन एनीवन ऑनलाइन। चलो पहले तो we'll use a simple approach, input calculation output, राइट। ये तीन स्टेप्स। इनपुट में क्या है आपके पास, इनपुट में मैंने ये स्टूडेंट का है, ये कॉपी करके इनपुट लिख देता हूँ, हो गया, इनपुट रेडी है। आउटपुट में क्या चाहिए आपको, कीज राइट, आउटपुट में की वगैरह और कुछ भी चाहिए, प्रिंट कैलकुलेशन अभी बताइए। पहले तो मुझे हर एक एलिमेंट को पिक करके कंपेयर करना है, मतलब इसको पिक करना है एज ए इटरेटर, इसको पिक करना है एज ए इटरेटर, इसको पिक करना है एज ए इटरेटर राइट। तो पिक कैसे करते हैं, लाइक फॉर फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे वेरिएबल आएगा इन स्टूडेंट्स राइट। अभी क्या पिक करना है बताइए, फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं, चलिए टेस्ट, टेस्ट लिख देते हैं, चलो टेस्ट। फिर अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट करके, यही पे प्रिंट करके देखिए, फिर प्रिंट टेस्ट। ओके, आउटपुट में अभी तो एरर देगा क्योंकि कुछ नहीं स्टोर किया, तो मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। चलो इतना एग्जीक्यूट देखिए, फॉर टेस्ट इन स्टूडेंट्स, प्रिंट ये आ रहा है, स्टूडेंट्स ओवरराइट हो रहा है क्या, नहीं ना, ओके। ओके, तो ये मतलब की सिर्फ प्रिंट कर रहा है, वैल्यू प्रिंट करना है तो कॉमा करके वैल्यू लिख दीजिए ना, आएगा क्या, अनपैक एक्सपेक्टेड, ठीक है, लेट नॉट, नहीं आ रहे,
नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया क्या? डिक्शनरी को मैं इटरेट कर रहा हूँ, बट डिक्शनरी इन रियल ऐसे ही वर्क होना चाहिए उसको, बट वर्क नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास अलग ऑप्शंस है। value button. Bulletin functions or method object is not iterable. ओके, आ गया। आइटम्स क्या करता है, मेरे डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, रदर टपल में, और उसका की एंड वैल्यू प्रिंट करता है, राइट? तो टेस्ट और टेस्ट भी प्रिंट करो, और फिर कॉमा वैल्यू भी प्रिंट करो, सॉरी यही चाहिए था। फिर इसके बाद एक लॉजिक भी चाहिए था आपको, लॉजिक ना यहाँ लिखिए, इफ वैल्यू ग्रेटर देन कितना चाहिए 35 कोलन इंटर, अभी शॉर्टकट यूज करता हूँ मैं, प्रिंट क्या चाहिए आपको, सिर्फ टेस्ट चाहिए ना, टेस्ट की जगह नेम लिखता हूँ यार, नेम एंड मार्क्स। चलो, वेरिएबल के नाम ही है ना, वो भी टेम्पररी है, आई कैन यूज एनीथिंग, यूज अ रिलेटेबल नेम्स, कॉपी नेम आउटपुट में चाहिए, मार्क्स कॉपी, मार्क्स कंपैरिजन कीजिए, प्रिंट कीजिए, आ गया, बन गया लॉजिक। तो ये मुझे कैसे पता चला कि ये लिखना होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में दिया था आपको। हाँ, डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन से मेथड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंटेशन है, जस्ट बाय द वे ये सब प्रैक्टिस होता है, ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, नहीं तो एक अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन आई हैव कंप्रेस्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कंप्रेस करके आपको बताया गया है, रुकिए इसमें बताता हूँ मैं, इसीलिए मैंने जितने चाहिए उतने ही इंपॉर्टेंट मेथड्स आपको करने के लिए बोला है होमवर्क में। रियल रियल में बहुत सारे मेथड्स है, दिख रहे हैं यहाँ पे इटरेटर्स में, आइटम्स वैल्यूज कीज, ओके, इटर आइटम्स रिटर्न्स एंड इटरेटर और डिक्शनरी की वैल्यू पेयर, और यहाँ पे रुकिए और एक डॉट आइटम्स करके है, यहाँ पे देखिए, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरीज लिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, तो यही चाहिए था। इटर आइटम्स ने पण येतं, यू कैन यूज इटर आइटम्स, क्लिक इटर आइटम्स में क्या होता है, इटर आइटम्स पे क्लिक कीजिए, और कैसे यूज करना है देखिए, ये देखिए कैसे यूज करना है, इटर आइटम्स वही यूज किया है हमने भी, और इटर आइटम्स में और ज्यादा फंक्शंस है, नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन आता है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाता है, थोड़ा उसका टेक्निकल नॉलेज लगेगा आपको, बट ठीक है, डॉट नेक्स्ट ऐसे करना पड़ता है, वो इटरेटर रहता है ना, एक्चुअल एरो जनरेट होता है बैकग्राउंड में, तो उसको एरो को मूव करने के लिए नेक्स्ट 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 नाम का फंक्शन आता है। ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग? ओके, आई गेस एवरीबॉडी इज Yes, sir. कॉन्फिडेंट, एंड आप लोगों को आता है ये ऐसे बहुत बेसिक ना, Sir, ऐसा कुछ अभी तो 5th स्टैंडर्ड से पाइथन सिखाते हैं लोगों को, लाइक इन द सीबीएसई आई गेस, तो ये 5th स्टैंडर्ड लेवल का चल रहा है ना? ओके, गॉट इट। ये ऐसे लॉजिक आप लिख सकते हो, ये सब को यू कैन कॉम्प्रेस, एक लाइन में कॉम्प्रेस कर सकते हो, कैसे? लैम्डा फंक्शन लिखिए, लैम्डा मार्क्स ग्रेटर देन 35 हो गया, राइट? और इसको मार्क्स की जगह भी स्टूडेंट्स का डिक्शनरी भेज दो, रुको, अल्टीमेटली फिल्टर ही है ना, कहाँ पे गया अपना फंक्शन, ये है, चलो दिस, अभी बताइए चेंज क्या करूं, पहले तो ये स्टूडेंट को कॉपी करके इधर लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, राइट? फिर यहाँ पे लैम्डा जब भी वॉट एवर इट पिक्स, जो एलिमेंट पिक होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा कि दो आएगा, दो आने चाहिए ना,
और बाय द वे ये ऐसा भी पिक नहीं होगा, ये पिक होगा यहाँ से, राइट? एंड ये कॉपी, ये नेम मार्क्स कॉपी करके इधर आएंगे, और लॉजिक, ये लॉजिक कॉपी करके, अरे लॉजिक तो सेम है, मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे लॉजिक मैंने पेस्ट कर दिया, बाकी सब इट विल टेक केयर, ये प्रिंट, ये वो व्हाटएवर इट इज। क्या बोल रहे हैं? लैम्डा वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मार्क्स, मार्क्स नहीं आ रहे लैम्डा में, मतलब ये स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे नहीं आ रहे, ये स्टूडेंट के जो मार्क्स निकल रहे हैं ना, ये इसमें नहीं आ रहे हैं, यही बोल रहा है। नहीं, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके, मतलब ये ऑब्जेक्ट नॉट इटरेबल है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। व्हाट आई कैन डू इज आइटम्स, मुझे क्या चाहिए, की एंड वैल्यू पेयर चाहिए, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, इसको लिस्ट में कन्वर्ट, फोर्सफुली टपल भी कर सकता हूं मैं। लेट्स चेक वेदर टपल करके देखिए, यू नीड टू बिल्ड अ लॉजिक। ठीक है, विल नॉट, हम इसको अभी वर्क पे डाल देते हैं, विल एक्सप्लोर मोर। मुझे भी सिखाइए आप कैसे करते हैं इसको, होमवर्क, नॉट होमवर्क, पुट इट इनटू क्लास वर्क। कल हम इससे स्टार्ट करेंगे, है ना, व्हाट इज हैपनिंग। मैडम आपका इटर आइटम्स चलता है क्या, देखिए इधर, इटर आइटम्स नहीं, नो एट्रीब्यूट, just okay, iterator, student iterator, okay, ठीक है, we'll see। आई फील यहाँ पे कुछ हमें आउटपुट एग्जैक्टली देना पड़ेगा, which we are missing। items, I get a list, इसको नहीं, let's okay, empty आ रहा है, so I'm getting a output, but what output we need to figure it out। ठीक है, okay, we'll do it this in the class tomorrow। okay, we'll build this logic। चलो, we'll see one more example of a filter। if value has, मतलब the person who has k in his names, lam str k in str, then एक स्ट्रिंग आप उठा सकते हो एज ए इनपुट, एंड देन के है कि नहीं वो चेक कर सकते हो, राइट, सिंपल। और उसी लॉजिक को आई एम पासिंग इट लाइक दिस, if you want to use it। so there's one more higher order function called reduce। reduce क्या करता है, this is मान लीजिए whenever you have large amount of data, sales, profit, ऐसे कॉलम्स है, एक्सेल में आपने देखा होगा there is a function called total, नहीं तो सम नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, जो सेल्स कॉलम में पूरा डेटा है उसको, सॉरी, सम करके आपको फाइनल में आंसर देता है, राइट, क्लियर ऑनलाइन। सो उसी फंक्शनैलिटी को इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन पाइथन वी यूज रिड्यूस। तो रिड्यूस क्या करेगा, जितने भी इनपुट्स है उसको सब मिला के एक आउटपुट निकाल के देगा आपको। तो फिर प्रॉफिट है तो सबका कंबाइन करके एडिशन आपको देगा, एवरेज निकालना है तो एवरेज देगा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, बट कंडीशन हैज टू बी सेम। उसका आंसर क्या आएगा, एक वैल्यू आंसर आना चाहिए, दैट्स इट, मल्टीपल आंसर्स नहीं आएंगे। सो
find the multiplication of all the elements in a given list. तो this can be one of the implementation. मान लीजिए एक बड़ा लिस्ट है, इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, आंसर एक ही आएगा ना, इतने सारे इनपुट है। तो इसीलिए हमने नॉर्मल प्रोग्राम कैसे होगा, फॉर नंबर इन नंबर्स रिजल्ट स्टार नंबर, रिजल्ट में मैंने 1 स्टोर किया, मतलब 1 into 3, तो आंसर आएगा 3। तो नेक्स्ट इटरेटर में क्या आएगा 5, तो रिजल्ट में ऑलरेडी 3 है, नंबर्स में क्या 5, 3 into 5 15, तो रिजल्ट में अभी 15 आ गया। तो ऐसे 15 into 6 फिर 7, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाके आई कैन गेट अ what you say a for loop use करके I can find a one answer called multiplication of this entire number। तो कितना आता है if I execute, ये इतना आपको आंसर आएगा, राइट, 1089728640। ओके, इसी को हमने रिड्यूस यूज करके किया है। रिड्यूस कैसे, रिड्यूस नाम का फंक्शन लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर्स है, नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जो हमने लिखा था, बट इंटरेस्टिंग ये देखिए, लैम्डा नंबर 1 कोलन नंबर 2 सेमीकोलन इथर मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ से वो हर बार 2 नंबर उठाएगा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ओके, और उस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट स्टोर करेगा हर बार। तो पूरा वो कैलकुलेशन एक ही जगह पे होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको प्लस करना है, तो ये एडिशन देगा, राइट। आपको फिर और कुछ ऑपरेशंस करना है, तो दैट अकॉर्डिंगली माइनस करके देखिए, माइनस भी इट विल गिव द नेगेटिव, एक से एक ऐसे माइनस करते जाएगा वो। ओके, तो सेम इम्प्लीमेंटेशन, जहां जहां पे भी आपको एवरेज निकालना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टोटल नंबर्स का, आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब उस फंक्शनैलिटी के लिए हमें रिड्यूस नाम का एक हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करना पड़ता है। एंड रिड्यूस एक्चुअली बाय डिफॉल्ट पाइथन में एज अ फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने ये लाइन लिखा है इसमें, देखिए, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। तो ये फंक टूल नाम का एक किसी ने पाइथन प्रोग्राम लिखा है, अपार्ट फ्रॉम पाइथन डेवलपर, जो पाइथन डेवलप किया है उन्होंने नहीं लिखा, इसीलिए हमने बाहर से फंक टूल इंपोर्ट किया है, कॉल्ड फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस। तो आपको रिड्यूस यूज करना है, यू नीड टू यूज ये फंक टूल नाम का जो भी फंक्शन है। तो इसी को, जो यह फंक टूल लिखा है, इसको ही लाइब्रेरीज बोलते हैं, इसको ही पैकेज बोलते हैं। क्लियर। सो यहाँ से आगे हम यही देखेंगे, लाइब्रेरीज, पैकेजेस। एग्जाम्पल है numpy, pandas, seaborn, matplotlib, beautiful soup, ये अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जो अपार्ट फ्रॉम पाइथन डेवलपर हम जैसे रेगुलर डेवलपर लोगों ने बनाया है, एंड दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू यूज। हमें सिर्फ यही लाइन लिखना है, फ्रॉम numpy। वो मीम का भी कुछ देखा था ना, मीम का पैकेज कुछ, तो कैसे लिखोगे, फ्रॉम मीम पाई, इंपोर्ट जो भी फंक्शन है उसका। याद है नहीं है मीम पाई, ये देखिए मीम पाई, ये ऐसे फ्रॉम मीम पाई, और फंक्शन कौन से है, देखिए ये फंक्शन सेव मीम टू डिस्क, ये फंक्शन आपको यूज करना है डायरेक्टली। और इसका इम्प्लीमेंटेशन है क्या, यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा कहीं, तो उसके अलग अलग, ओके, कौन कौन से फंक्शन पैरामीटर्स लेता है, देखिए, इट्स टाइम, हेडेक, इट्स मी, अल्सो मी वगैरह, अलग अलग बिल्ट इन टेम्पलेट्स है कुछ। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ रहेंगे होम पेजेस। ओके, ठीक है, ये दिस इज मीम पाई, ऐसे इंस्टॉल। बाय द वे अभी कैसा है कि वट एवर हमने ये फंक टूल यूज किया है, ये रेडिली अवेलेबल है, ये क्या है, सिक्योर्ड है, मतलब जो जिन्होंने पाइथन बनाया है इसको ऑलरेडी वेरीफाई किया है कि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर मतलब वायरस वगैरह नहीं है। बट बाकी जो भी क्या बोलते हैं उसको, ऑथराइज्ड है और अनवेरिफाइड है, उससे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है बाहर से।
जैसे हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वैसे गूगल से आपको कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे शुरुआत में ही यही लिखा है, देखिए पिप इंस्टॉल मीम पाई, क्योंकि ये ऑफिशियल चैनल से नहीं है, ये हम जैसे लोगों ने बनाया है, विच मे नॉट बी अ गुड, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ वायरस वगैरह डाला है एंड देन आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला और आपको पूरा डेटा चोरी हो रहा है। सो वो सब अवॉइड करने के लिए यू नीड टू इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स। बाय द वे इन रियल वर्ल्ड ये नहीं है, लाइक ओके मैं आपके एक एग्जांपल के तौर पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट डजंट मीन दिस इज व्हाट इट हैपेंस पिप इंस्टॉल। सो ऑल दीज आर द डेवलप्ड, मतलब ये पाइथन लाइट वेट करने के लिए, पाइथन आप डाउनलोड करते हो तो 120 MB का होता है, राइट? तो सारे पैकेजेस पाइथन में ही आ गए तो पाइथन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरी आप कभी यूज नहीं करोगे, तो इसीलिए इट हैज बीन सेपरेटेड, मतलब इसको इंस्टॉलेशन सेपरेट किया गया है एंड एक्चुअल लाइब्रेरीज अलग है। Okay, I see a lot of people are doing. So reduce curve, you can take few more examples that we can check. Huh? This is हे actual हे जे reduce function आहे ना, हे याला हँडल करतं, हे दोन नंबर म्हणजे पहिला 3 आणि 5 येणार, मग त्याच्यानंतर यांच्या दोघांचा रिझल्ट कोण आहे ना, हा आणि 6 येणार, मग यांच्या दोघांचा रिझल्ट हा आणि हे ट्री 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 शेप में रहता है वो, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर है, तो इन दोनों का आंसर नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, ओके, फिर इसका एक आंसर आएगा, ये बाहर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये आंसर, फिर इसका आंसर आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर ये आपको मिलेगा, ओके। ट्री शेप मध्ये ते येत असतं, दो दो दो, उसका आंसर नीचे नीचे इवेल्युएट होता है, ओके। तो इसीलिए हमने इनपुट में नंबर 1 एंड नंबर 2 लिया है, ओके। So clear, this is what you will use mostly higher order function, तो आप depending upon आपका कितना expertise है, how well you are, how good you are with the functions, तो उसके ऊपर आप higher order function use कर सकते हैं, but you can practice, okay। बाकी के जो भी है मेथड्स हमने देखे, रेगुलर मेथड से आपको प्रोग्राम आ गया, वेल एंड गुड, ऐसा नहीं कि किसी ने फोर्स किया आपको वही यूज करने के लिए, बट अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन निकालना है, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड बिफोर दिस ये देखिए, ये आखिरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सॉल्व्ड प्रोग्राम्स है, सॉल्व्ड प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने सॉल्व किया है विद द डिफरेंट अप्रोच। मान लीजिए एक पहला है, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स and their frequency in a given sentence, find odd and even numbers from the given list of range। तो अप्रोच देखिए, पहला यूजिंग फॉर लूप अप्रोच यूज करके ये प्रोग्राम सॉल्व किया है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच यूज करके ये सॉल्व किया है, सेम प्रोग्राम है, फिल्टर फंक्शन यूज करके ये अप्रोच सॉल्व किया है, राइट। फिर सेम ऑड नंबर का भी हमने वही किया है, फॉर लूप किया है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया है, फिल्टर यूज करके किया है, अगेन गिवन नंबर इज, अभी देखिए फाइंड आउट द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ये प्राइम और नॉट का लॉजिक है, ओके। फिर सेम लूप यूज करके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके, ओके। फिर डुप्लीकेट है या नहीं ये चेक कर रहे हैं, लूप यूज करके, सेट यूज करके, राइट, दो अप्रोच। फिर काउंटर फॉर कलेक्शन मॉड्यूल यूजिंग काउंटर, एक फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, कलेक्शंस नाम का भी एक लाइब्रेरी है विच आई एम यूजिंग अ काउंटर, तो यहाँ पे काउंट करके देख रहे हैं, फाइंड डुप्लीकेट यूजिंग काउंटर, एक तीसरा ही अप्रोच है, दो अप्रोच हमने देखे, थर्ड अप्रोच, राइट। चौथा अप्रोच लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, so each program I have given a multiple approach, duplicate maximum number of times in a given list, कौन सा नंबर है जो डुप्लीकेट हो रहा है प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डुप्लीकेट हो रहा है, उसके लिए देखिए अलग अलग लॉजिक है, ओके।
यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग कलेक्शन काउंटर। मोड नाम का कुछ फंक्शन है, उससे भी हम कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का भी कर सकते हैं, राइट। स्वैप टू नंबर, स्वैपिंग ऑफ लॉजिक्स। ये देखिए, ये सिंपल लॉजिक जो हर प्रोग्राम में वर्क होता है। दिस इज वन मोर लॉजिक जहां पे भी टेम्पररी वेरिएबल यूज, विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल आई कैन सॉल्व द स्वैप द नंबर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा इसको, इफ यू गेट अ टाइम, ट्राई टू प्रैक्टिस। ये बोला, ये दिस कैन बी कॉल्ड एज अ गूगल लेवल। ये थोड़ा गूगल लेवल का है। गूगल मतलब ठीक है, गूगल इतना भी चिंदी नहीं करेगा कि स्वैपिंग ऑफ नंबर यूज करे, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हो। इन जनरल क्या होता है, टेम्पररी वेरिएबल, नहीं तो अनपैकिंग पैकिंग वाला n1 n2 n2 n1। बट देयर इज अ थर्ड मेथड, वो क्या करता है ना, सब्ट्रैक्ट करता है n1 माइनस n2, फिर n2 में, फिर n2 प्लस n1, ऐसा नंबर सॉल्व करता है। ये अच्छा है। हाँ, ओवरलैपिंग रिलेटेड है, बहुत सारे फंक्शंस किए हैं, आप देख सकते हो, है ना। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस। क्लियर सबको व्हाट वी आर लर्नड? तो ये अब तक जो सीखा है, समझ में आया सब कुछ? वन थिंग विच इज पेंडिंग फ्रॉम माय साइड इज क्लास का, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। डिक्शनरी को एक्सेस करना है यूजिंग फिल्टर्स एंड ऑल, राइट। कहाँ था ये क्लास वर्क वाला, वो टैग करके रखा है। ठीक है, यही कही था ना। आई विल सेव दिस फाइल एंड आई विल लेट यू नो। ये है, ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो बेसिक पाइथन इज थैंक यू सर। ऑलमोस्ट सभी हो ही गए हैं। सो विल ट्राई टू कवर, सॉरी, विल स्टार्ट लाइब्रेरीज। कल से व्हाट इज लाइब्रेरी, ये वो वहां से शुरू होगा फिर, है ना। ऑनलाइन क्लियर सबको व्हाट इज लाइब्रेरी एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑनलाइन। एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। Okay, thank you. If you want to connect, you can connect. I will solve the problem. इसको connect करना है तो let's figure it out, इसमें क्या हुआ है। If anybody is interested, you can sit. For lambda name क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी इटरेटर कलेक्शन है ना ये। लेट्स वन बाय वन डिक्शनरी के एलिमेंट एक्सेस होते हैं क्या, देखते हैं। क्या करना है इसको, सिर्फ इसको कुछ नहीं, जो नेम लिया है उसको ही रिपीट करो। चलो, इतना तो आ रहा है, मतलब जो नेम उठा रहा है उतना तो रिपीट हो रहा है। अभी मुझे कंडीशन लगाना है, कंडीशन से पहले मुझे वैल्यूज चेक करनी है ना। नेम को वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है फिर यहाँ पे, वैल्यू ले लो, नहीं आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। lambda missing one required positional argument value। lambda मिस कर रहा है क्योंकि ये पास नहीं हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स। चलो ओके, पहले तो इसको, ये होगा लिस्ट, ये होगा टपल। टपल में पास करते पहले, ये ऐसे ही था ना कुछ। अमित कुमार 88, स्टूडेंट्स 1 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। फिर भी नहीं ले रहा है, मतलब अनपैकिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। Lambda is not taking, missing one positional argument।
कैन सॉल्व, मुझे वो आपको बट वो कॉम्प्लेक्स मेथड दिखाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज नाम का एक फंक्शन है, इसमें से मैं वैल्यू उठा सकता हूँ, डिक्शनरी डॉट कीज से डिक्शनरी कीज प्रिंट हो ऑब्जेक्ट हैज सकते एन हैं। एट्रीब्यूट बोलेगा फिर। नहीं, वैल्यूज अभी देखिए सिंगल वैल्यू पे ये वर्क होता है। डिक्शनरी हाँ सर, डिक्शनरी से नहीं ना, रुको डिक्शनरी है ना ऊपर, क्या है आपने डिक्शनरी तो बनाया नहीं। ये कॉपी सर अब ब्रैकेट करो। इटरेटर में मेथड दे तो चलता है क्या? वो हो रहा है ना, अभी स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज हो रहा है, तो वैल्यूज में निकाल रहा हूँ, फिर वैल्यूज ग्रेटर देन 35 वो भी आ जाता कंडीशन अरे क्या ना? 32। नहीं अभी नाम चाहिए ना मुझे, नाम चाहिए ना, नाम नाम नाम। तो सर वहाँ पे की लगा है क्या? स्टूडेंट डॉट की एंड हैप्पी वैल्यू ऐसा। आप कीज पास कर रहे हो, वैल्यूज दे रहे हो, नहीं हुआ वो, यहाँ पे आइटम्स ही सही है, बट आई वांट टू फिगर इट आउट कि ये लैम्डा 2 क्यों नहीं वैल्यू ले रहा है। तो Oh, just a second.